डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। હેલો એવરીવન, કેમ છો? મજામાં? હોપ યુ ઓલ આર ફાઇન. બી પોઝિટિવ, સ્ટે પોઝિટિવ and always ready to learn something new each and every day of our life, right? So let's start a new topic. Paper code number 102, which is Basics of Accounting, Block 4, Unit 1, which is Rectification of Errors. I am Neelam Pandya, Assistant Professor, Vocational Professional Department, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University welcomes you in a Chaitanya Studio online lecture series of BBA course. Again I repeat, our unit number 1, which is Rectification of Errors. So which kind of rectification when we apply the final accounts, तो किस किस प्रकार की एरर्स वहाँ पे आती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एरर्स इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, types of errors not affecting trial balance and their reflections, errors affecting trial balance and their reflections, accounting treatment of all the errors. मीन्स कोई भी प्रकार की एरर है, पहले तो हमें ये जानना है कि कितने प्रकार की एरर्स आती है. एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस, एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस, एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. तो कौन कौन सी और किस किस प्रकार की एरर्स है वो हमें जानना है, और फिर उसे रेक्टिफाई कैसे करना है, उसे सुलटाना कैसे है, वो सारी चीज़ें हम इस यूनिट में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. The motive of preparing trial balance in the financial account is to check the accuracy and correctness of recording the transactions in a journal. Later on posting it is in ledger and closing the balance of account. If the trial balance of both side it is understood, then recording is going to perfect. जो अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल सही आता है तो हमें लगता है कि everything is appropriately done. Even if trial balance matches, there could be few errors which might have been spotted in the accounting records. So the error which affect the trial balance in a few, those who don't must be spotified and rectified. तो आगे हम जानेंगे डिटेल में कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है कि नहीं करती है, या फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर होने के बाद कौन सी एरर होती है, उसके पहले कौन सी एरर होती है, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है. तो ये सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स इन द सेल्स बुक विच विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज द बोथ साइड ऑफ अफेक्ट दिस ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस केस. So such transactions need to be identified and placed accordingly. मीन्स यहाँ पे लिखा है कि क्रेडिट सेल कुछ हुआ है, तो क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड जो एट द टाइम ऑफ एंट्री के जो भी तारीख को वो हुआ होगा तो उसका रिकॉर्ड नहीं है. तो अब नेक्स्ट अब उसका रिकॉर्ड कैसे करना है. तो दिस प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग द एरर्स committed and to the set of accounting records, right, it is called a rectification of errors. Accounting errors can be classified into two parts based on whether they affect trial balance or not. So इसी बेस पे हमें रेक्टिफिकेशन करना है कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है. तो दोनों टाइप को हम अच्छी तरह से जानेंगे. Errors dictated after preparation of final accounts. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लिखा है कि एरर, तो विच काइंड ऑफ एरर. फर्स्ट, विच इज अ एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, एंड सेकंड, एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. सो सबसे पहले हम जानेंगे कि एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. A trial balance is basically prepared to understand if the records or transactions recorded are arithmetically correct or not. But as discussed, the above trial balance cannot be considered as the base of perfect accounting treatment. Even the scenario errors would have been occurred which does not affect the trial balance. These errors are difficult to dictate. This could be caught comparing the recipients for the customers and payments from the traders. Again I repeat, this could be caught by
comparing the receipts from customers and payments to the traders, voucher of purchase and sales, and may other transactions by auditing the account. To mark this error in the books of account, rectified entries are to be passed in the journal proper. This type of category are: फर्स्ट कैटेगरी इज एरर ऑफ कमीशन. अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एरर्स विच में नो अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मीन्स के एरर हो जाती है, गलतियां होती है, बट वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है. तो वो कौन कौन सी गलतियां है? तो उसमें से पहली गलती है एरर ऑफ ओमिशन. दिस एरर हैपन्स व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज टोटली एब्सेंट to be recorded in the books of journal or ledger. Such an error is known as the error of omission. In such error, the trial balance gets tally even though the errors continue to be as posting. The both side, debit side and credit side, is left. So, for an example, a transaction is totally omitted can be recorded in the journal or subsidiary books or ledger in the form of entry. For example, cash of 2000 is not recorded, so by the writing correct entry to the above error can be rectified. Cash to sale, cash account debit and sale account credit. मीन्स पूरी एंट्री ही छूट गई है. तो दोनों साइड, डेबिट साइड आइदर द, मतलब यहाँ पे बताया है कि कुछ सेल हुआ है फॉर ₹2000, पर यहाँ पे प्रॉपरली बताया है कि पूरी एंट्री ही छूट गई है, तो उसे हम कहेंगे एरर ऑफ ओमिशन. तो डेबिट साइड भी कोई 2000 का डिफरेंस नहीं आएगा, क्रेडिट साइड भी 2000 का डिफरेंस नहीं आएगा. तो ये जो एंट्री है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज बोथ साइड 2000 का गैप है. तो यहाँ पे कैश टू सेल हम एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट. तो ये जो एंट्री है वो एरर है विच नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, के इससे ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ता नहीं है. अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक और द लेजर, बट the posting both accounts has not been done. For example, machinery purchase, but posting of the both account has not been done. For example, machinery purchase on a credit from Ram Electricals for ₹50,000 is recorded in the journal, but they affect the accounts of machinery and Ram Electrical has not been given. This could not be rectified debiting machinery account and crediting Ram Electrical account in ledger. मीन्स अगेन आगे हमने जो देखा कि 2000 रुपीज़ का क्रेडिट नहीं बट कैश में सेल हुआ है, जो एंट्री ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड ही नहीं की गई है, तो उसे ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं करेगा. सिमिलरली मशीनरी परचेज की है राम से, राम इलेक्ट्रिकल कोई शॉप है, वहाँ से मशीनरी परचेज की है वर्थ ₹50,000. तो दोनों साइड एंट्री नहीं आएगी, राम अकाउंट डेबिट एंड टू मशीनरी टू कैश. तो सेकंड इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. When error occurs because it's not according to the accounting principle, it is the error of principle. This means the errors do not affect the trial balance because they have entered the books of account, but instead of one account or any other account given the effect. For example, 40,000 worth furniture purchase is debited to purchase account. This entry can be charged by and error committed purchase to cash. मीन्स जहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई कंपनी का अकाउंट आता है और परचेज किया है, तो जो करेक्ट एंट्री है उसमें आएगा व्यक्ति का नाम टू परचेज टू पर्टिकुलर पर्सन, बट अगर कैश में है तो परचेज टू कैश आएगा. तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, फर्नीचर परचेज किया है 40,000 का बाय कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. Errors of commission. In these transactions, in a preliminary book are recorded
at the original amount, but either the more or less than it, it could be possible that entries might be recorded in a wrongly subsidiary books. Transactions are recorded in correct book by a wrong amount. For example, goods sold 5,000 to Anand is recorded as a 500. This error rectified by Anand account debit to sell account credit 500. तो इट इज नेचुरल कि 5000 की एंट्री करनी थी बट उसकी जगह पे 500 की ही एंट्री हुई है. सो वेरी लेस अमाउंट, देर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ 4500. 5000 माइनस 500 करेंगे तो 4500 की रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा 4500. तो एरर वाली एंट्री क्या है, आनंद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट 5000. तो अब इसे करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आनंद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट हमें कितनी लिखनी है 5000. तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी फॉर द प्रॉपर एंड करेक्ट एडजस्टमेंट, बिकॉज 500 की ही एंट्री हुई है जबकि करेक्ट अमाउंट है 5000. सो डिफरेंस इज 4500. सो रिफ्लेक्शन एंट्री जो है वो होगी आनंद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट 4500. सो 4500 प्लस 500 करेंगे तो टोटल 5000 आ जाएगा. Errors which not affect trial balance. The fourth one is compensatory errors. When more than one other error is committed but their effects are recorded on the both side debit and credit, and the trial balance is such known as compensatory error. For example, rupees 100 is debited instead of rupees 1000 to Geeta's account, means 100 ही डेबिट हुए हैं जबकि करना था हमें 1000 डेबिट करना था बट उसकी जगह पे 100 ही डेबिट हुआ है. एंड द अनदर इज 1000 इज क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ रुपीज 100 टू सीताज अकाउंट्स, मीन्स क्रेडिट होना चाहिए था 1000 बट हुआ कितना 100. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 900 बोथ साइड. To balance the correct amount entry needs to be passed and rectify. That would be Geeta account debit 900 to Sita account credit 900. तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसमें भी 9000 का डिफरेंस है और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसमें भी 900 का डिफरेंस है. सो बोथ साइड द डिफरेंस इज 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900. 900 डेबिट साइड, 900 क्रेडिट साइड. सो गीता अकाउंट डेबिट 900 टू सीता अकाउंट डेबिट 900. सो दिस इज कॉल्ड अ कंपनसेटरी एरर्स. नाउ the second one is error which affect the trial balance. तो यहाँ पे पूरा एक चार्ट बना के दिया है कि errors which affecting the trial balance. तो उसमें भी दो तरह के हैं, errors dictated before preparation of final accounts and error dictated after preparation of final accounts. तो जो एरर डिक्टेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है उसमें तो कुछ एक आधी उसमें एरर आएगी, बट जो मेजर पॉइंट है, मेजर पार्ट है वो है एरर्स डिक्टेटेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. तो यहाँ पे लिखा है एरर्स ऑफ पोस्टिंग, एरर्स ऑफ रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अमाउंट, errors in totaling the subsidiary books, and errors committed while preparing the trial balance. So let us check one by one. So अभी तक हमने जो errors के बारे में डिस्कस किया वो था errors which not affect the trial balance. Errors which not affect the trial balance. And now we are discussing about error which affect the trial balance. जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट होती है उस किस किस प्रकार की गलतियां है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है. तो यहाँ पे अगेन आई रिपीट कि यहाँ पे लिखा है कि एरर्स डिक्टेटेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड एरर डिक्टेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. उसमें से जो बिफोर फाइनल अकाउंट्स है उसमें 4 प्रकार की गलती हो सकती है. errors of posting, errors regarding the balance of an amount, errors in totaling the subsidiary books, and errors committed while preparing the trial balance.
First is error of posting. Omission of posting of any account. It is the type of omission. In this good, the worth rupees 8,000 were sold to Akshay. This transaction is correctly recorded in the sales of books, but the posting in Akshay's account is not done. So, credit sales of Akshay is yet not recorded in his ledger. So, the error will be rectified by posting the amount on debit side of Akshay's account. Means each and every journal entry has a both side. Right? तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन दिया है कि 8,000 goods worth rupees 8,000 were sold to अक्षय, तो जो सेल्स अकाउंट है उसमें एंट्री हो चुकी है, बट जो अक्षय का अकाउंट है उसमें सेल की एंट्री नहीं हुई है. मतलब अक्षय अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री होनी चाहिए जो कि नहीं हुई है. तो ये है एरर ऑफ पोस्टिंग. वन साइड एंट्री डन है बट वन साइड एंट्री हुई ही नहीं है, तो ये एक एरर मानी जाएगी जो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट करेगी. सेकंड, twice a posting in an account. In this error, the same transaction is posted twice. For example, salary is paid 30,000, partly recorded in the cash book, but by mistake it has been recorded twice in a salary account. Hence, it will be rectified by crediting the salary account by the same amount. मीन्स दो बार एंट्री हुई है, एक एंट्री दो बार हुई है, तो वो भी ट्रायल बैलेंस को नेचुरली इफेक्ट करेगी. And third one, posting a wrong account in account. As the name suggests, the entry seems perfect amount recorded, but it is wrong amount. Means entry हुई है, but wrong amount से entry हुई है. For example, the building is purchased worth rupees 50 lakh is recorded in a building account as a 5 lakh. So the balance it out with the correct amount, building account is debited with the 45 lakhs. So again I repeat, यहाँ पे तीन प्रकार की पोस्टिंग की एंट्री बताई है. फर्स्ट तो है कि एक साइड एंट्री हुई है बट एक साइड नहीं हुई है, तो ये भी एक ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी. दूसरा जो है उसमें लिखा है कि एक एंट्री दो बार हो चुकी है, मतलब सेम एंट्री बट ट्वाइस, सो ये भी रिफ्लेक्शन टू ट्रायल बैलेंस. एंड थर्ड, पोस्टिंग अ रॉन्ग अमाउंट इन अकाउंट. तो 50 लाख हमें पोस्ट करना था बट उसकी जगह पे 5 लाख ही किया है, तो जो डिफरेंस है 45 लाख वो रिफ्लेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस में. अंडरस्टैंड? ओके, सो नाउ सेकंड इज एरर्स रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ अकाउंट. Errors in finding the balance of account. If the balance of any account is found either more or less in the trial balance does not tally. If the after calculation one gets to know the balance is less in debit side, then put the deflict amount on a debit side, and if the less at credit side, put the deflict amount accordingly. So ये actually क्या है वो हम example से जानेंगे. Errors regarding balance of an account. So for example, after calculation one spotted that the purchase account is work out of rupees 5,000 instead of rupees 20,000 at a debit side. The right rupees is 1,500 which is debited on the debit side of the account to rectify the error. Means 5,000 की एंट्री हुई है बट एक्चुअली कितनी होनी चाहिए थी 20,000 की, तो जो डिफरेंस है 50,000 वो हमें राउंड ऑफ करना है एट द डिफरेंट साइड. मीन्स 5,000 है तो बाकी का 15,000 करो तो 20-20 बोथ साइड इक्वल हो जाएगा. तो ये है बैलेंस रिगार्डिंग एरर. Error in writing the balance of an account. In this error, the balance of account, for example, opening balance of machinery is 1 lakh, but it has recorded 10,000, so the balance decreased by 90,000. मतलब अलग अलग प्रकार की बैलेंस रिलेटेड एरर्स है कि कम अमाउंट जो है वो डेबिट हुई है, कम अमाउंट क्रेडिट हुई है, ज़्यादा होनी चाहिए थी बट कम हुई है, दो बार एंट्री हो गई है. तो ये सारी बैलेंस रिगार्डिंग एरर्स है. तो यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है कि जो मशीनरी है
वो एक्चुअल है 1 लाख रुपीज़ की, बट रिकॉर्ड हुआ है ओनली 10,000। तो जो 90,000 का डिफरेंस है वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमें ये अकाउंट जो है वो सरभर करने के लिए 90,000 की रिफ्लेक्शन एंट्री वहाँ पे दिखानी होगी। Balance of an account omitted, it's a general error in which opening balance of account is totally omitted, which means not recorded at all. So new original entry can be done in the ledger with a proper effect and amount. Means entry पूरी entry ही नहीं हुई है, salary worth ₹50,000, बट सैलरी की एंट्री ही नहीं हुई है, तो हमें पहले से वो बैक में जाके उसी तारीख में एंट्री करनी है, तभी वो जो डिफरेंस है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, अमाउंट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट। बैलेंस ऑफ 500 ऑफ अंकित account is written on a credit side. Errors can be reflected by the writing the double amount 500 plus 500 1000 on a debit side of account. तो मीन्स क्या होगा कि 500 जो है वो हमें लिखना था डेबिट साइड, बट हमने लिख दिया क्रेडिट साइड, तो ऑलरेडी वहाँ पे 500 का डिफरेंस आना चाहिए और हमने लिख दिया 500 गलती से क्रेडिट साइड। तो हमें जो गलती को सही करने के लिए डेबिट साइड क्या करना होगा, 500 प्लस 500 दो बार एंट्री करनी होगी, डबल अमाउंट, एंट्री विथ अ डबल अमाउंट। अगर हम 1000 की एंट्री डेबिट साइड करेंगे तो ही वो इक्वल होगा, और जो करेक्शन होगा वो 500 ऑलरेडी डेबिट साइड आ जाएगा। नेक्स्ट, बैलेंस रिटर्न एज अ रॉन्ग अमाउंट एट अ रॉन्ग साइड। So let's take above the example Ankit with the account with the balance of 500. So the error is committed, that is account has been credited with 50 rupees. So the balance of error Ankit account will be debited with 550. Means again जो 500 एंट्री करनी थी उसकी जगह पे 50 ही किया है, तो फिर से रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड, अमाउंट भी गलत है और साइड भी गलत है कि जो डेबिट साइड 500 करना था उसकी जगह पे क्रेडिट साइड किया, बट वो भी 50 किया, 500 की जगह पे 50 रुपीज़ की एंट्री की। तो उसे सही करने के लिए डेबिट साइड हमें 550 रुपीज़ की अंकित के अकाउंट में एंट्री करनी होगी, तब जाके वो इक्वल होगा। तो ये है डिफरेंट टाइप की एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, अगेन ये कंटिन्यू है, एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सो नेक्स्ट पार्ट इज एरर इन टोटलिंग द सब्सिडरी बुक्स। As discussed before, the trial balance will not tally if the error is committed while doing the total of subsidiary book in a purchase, sale, goods return, cash book. This error can be rectified by writing necessary notes and respective account. A journal entry is not necessary to rectify this error. Means at the time of preparation of subsidiary books, we already discuss in some unit, एक subsidiary बुक्स का एक पूरा यूनिट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि किस किस प्रकार की सब्सिडरी बुक्स अवेलेबल है। तो सब्सिडरी बुक्स में क्या आएगा, कैश बुक आ जाएगा, सेल्स बुक आ जाएगा, परचेज बुक आ जाएगा, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ऑल काइंड ऑफ सब्सिडरी बुक्स आर अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसमें जब एंट्री कर रहे थे तो वहाँ पे गलती हुई, तो ये जो एरर है वो ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होगा और उसे पहले उसे सही करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस सही होगा। नेक्स्ट, एरर कमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। If the possibility of errors happening in the preparing trial balance is like the error of totaling of trial balance, balance of an account is omitted, recorded twice, wrong amount recorded, wrong side recorded, wrong amount recorded, wrong side recorded. After these errors are rectified, a new trial balance is prepared. जब ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर कर रहे होते हो उस टाइम पे भी गलती होने की शक्यता है, तो वो किस किस प्रकार की एरर्स हो सकती है। तो
अगेन आई रिपीट कि यहाँ पे लिखा है कि इन द एरर इन टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ओमिटेड, मीन्स पूरे के पूरा अमाउंट पूरा अकाउंट ही छूट गया. फिर रिकॉर्डेड ट्वाइस, एक एंट्री 2 बार कर दी तो भी गलती आएगी. रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, 500 की जगह 5000 रिकॉर्ड किया तो भी गलती आएगी. रॉन्ग साइड रिकॉर्डेड, डेबिट साइड रिकॉर्ड करना था बट क्रेडिट साइड कर दिया तो भी गलती आएगी. रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, 5000 रिकॉर्ड करना था बट 10,000 रिकॉर्ड कर दिया तो भी गलती आएगी. तो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर ऑकर्ड व्हेन ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर कर रहे हो, तब जो एरर्स आती है वो इस डिफरेंट टाइप्स की होती है. सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, आपको ये 1 मार्क्स की डेफिनेशन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म ट्रांजेक्शन. व्हाट इज ट्रांजेक्शन? तो अ ट्रांजेक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ट्रांजेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है. वो आइदर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने परचेज की है, सेल की है, फिर गुड्स एक्सचेंज किए हैं और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज किए हैं, सेल किए हैं. किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन है उसे हम सिंपल टर्म्स में क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन. Second is rectification. What do you mean by rectification? So it is an act of changing something wrong to make it correct or satisfactory. तो ये पूरे यूनिट में हमने पूरी गलतियाँ ही निकाली है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के टाइम पे क्या गलती होती है, बिफोर ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती है वो कौन कौन सी गलती है, इफ़ेक्ट नहीं करती है वो कौन कौन सी गलती है, ये हमने जाना. और हमारा जो यूनिट का नाम है वो ही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. रेक्टिफिकेशन मीन्स आपको कुछ चीज़ है गलत है उसे सही करना है और सेटिस्फैक्टरी वे में करना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेक्टिफिकेशन. Next is deflect. It is the amount of which something, especially the amount of money, is a smaller than it should be. Means एक small amount, वो money के जो रूप में हो सकता है या फिर टोकन ऑफ अमाउंट या फिर टोकन ऑफ कोई चीज़ वस्तु है उसके अनुरूप भी उसे डिफ्लिक्ट कहा जा सकता है. फोर्थ वन इज एरिथमेटिकल. एरिथमेटिकल मीन्स व्हाट? It is the branch of mathematics that consists the studying of numbers, especially the properties of tradition operations of them, such is an addition, subtraction, multiplication and division. So this is called a arithmetical. Arithmetical के जिसमें आप कुछ ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? एरिथमेटिकल वे. तो आई होप आपको ये 2 प्रकार की जो एरर्स है उसके बारे में समझ में आया होगा और उसे करेक्ट वे में कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा. और किस किस टाइप की एरर्स होती है जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेज़र पोस्टिंग करते हैं, फिर लेज़र पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं या फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कंटिन्यू जो प्रोसेस है उसमें किस किस प्रकार की एरर्स आती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. आई होप ये सब आपके लिए यूज़फुल होगा और आप जब ये यूनिट पढ़ोगे तो आपको ये यूज़फुल होगा और एग्ज़ाम में भी आपको यूज़फुल होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू एवरीवन. बी हैप्पी, स्टे हैप्पी. थैंक यू.